جو اور بیلا کی کہانیاں بیماری کا دن۔ ایک صبح جو اپنے بازو میں درد کے ساتھ بیدار ہوا۔ اس نے احتیاط سے ایک انگلی سے اسے چھیڑا۔ الفاف۔ یہ واقعی تکلیف دہ تھا۔ جو بستر سے باہر نکلا اور اپنا ڈریسنگ گاون پہنا، بہت احتیاط سے، تاکہ اس کا خراب بازو ہل نہ جائے۔ پھر وہ نیچے گیا۔ ماں باورچی خانے میں تھی، الماری میں اناج کی تلاش کر رہی تھی۔ ہمارے پاس پھر سے کارن فلیکس ختم ہو گئے ہیں، اس نے بغیر پلٹے کہا۔ ماما، جو نے شروع کیا، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہے۔ لیکن اس وقت بیلا باورچی خانے میں آئی۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تھی۔ ماما، وہ رو پڑی، میں بہت بیمار ہوں۔ واقعی بہت بیمار۔ میرا پیٹ واقعی بہت درد کر رہا ہے۔ میں اسکول جانے کے لیے بہت بیمار ہوں۔ ماں پریشان تھی۔ اس نے بیلا کا ماتھا چھو لیا۔ تمہیں تو بخار ہے لیکن تم کل ٹھیک تھی۔ اب میں ٹھیک نہیں ہوں، بیلا نے کہا۔ برا کرم، ماں۔ کیا میں بستر پر جا سکتی ہوں؟ بیلا کو ناشتہ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جو نے اپنی کلائی کے بارے میں ماں کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ماں بیلا کی بہت فکر مند تھی۔ برا کرم، صرف لباس پہن لو، ورنہ تم اسکول کے لیے دیر ہو جاؤ گے۔ ماں بیلا کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر رہی۔ والد نے جو کو اسکول چھوڑا اور جو نے اپنی کلائی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ میں کل فٹ بال کھیل رہا تھا اور میں نے اسے مارا اور یہ ابھی تک درد کر رہا ہے، اس نے کہا۔ شاید صرف ایک چوٹ ہو، والد نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ بیلا جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مجھے تھوڑی بخار جیسی لگ رہی تھی۔ یہ ہمیشہ بیلا کے بارے میں ہوتا ہے، جو نے غصے سے سوچا۔ اسکول میں جو کو اپنے بازو کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اسے واقعی اسے بہت ساکت رکھنا پڑتا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ ابھی بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے لکھ سکتا تھا۔ گھر پر ماں بیلا کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس نے اسے بستر پر واپس لایا اور اس کے گرد کمبل ڈال دیا۔ وہ اس کے لیے آہستہ آہستہ چوسنے کے لیے پانی کا گلاس لائی۔ اس نے اس کے سر پر پتلا کیا اور اسے ایک کہانی سنائی۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا اب تھوڑا سا ناشتہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں کچھ نہیں کھا سکتی، بیلا نے کہا۔ ماں پریشان تھی۔ یہ بیلا کی طرح نہیں تھا کہ وہ کچھ نہ کھائے۔ وہ بیلا کے ٹیڈی بیئر کو زمین سے اٹھانے کے لیے جھکی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے بستر کے نیچے کچھ دیکھا۔ مٹھائی کے رپڑوہے کا ایک بڑا ڈھیر اور ایک خالی ڈبہ۔ بیلا، ماں پکار اٹھی۔ کیا یہ وہ مٹھائیاں ہیں جو آنٹی جیکی نے آپ کو بھیجی تھیں اور جنہیں آپ کو اپنے جنم دن کے لیے بچانا تھا؟ بیلا بہت سرخ ہو گئی۔ میں جلدی جاگ گئی اور مجھے بھوک لگی، اس نے چھوٹی سی آواز میں کہا۔ لیکن بیلا، ماں نے کہا، کوئی تعجب نہیں کہ آپ کا پیٹ خراب ہے۔ آپ نے ہر ایک کو کھا لیا ہے۔ ایک گھنٹے بعد ماں اور بیلا اسکول جا رہی تھیں۔ بیلا کا پیٹ بہتر ہو گیا تھا اور ماں کام پر واپس جانا چاہتی تھی۔ ہیڈ ٹیچر مسز سمیلز ان سے ملنے کے لیے دوڑی۔ اچھا، تم یہاں ہو، اس نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیدھے ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ ہسپتال؟ ماں نے کہا۔ اس نے صرف بہت زیادہ مٹھائیاں کھائی ہیں۔ میں بیلا کی بات نہیں کر رہی ہوں، مسز سمیلس نے کہا۔ میں جو کی بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا بازو توڑ لیا ہے؟ کیا؟ ماں نے کہا۔ ہسپتال میں ماں اور جو کو انتظار کرنے والے کمرے میں بیٹھنا پڑا جب تک کہ جو کی ایکس رے نہ ہو سکے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماں نے کہا۔ میں نے کوشش کی، جو نے کہا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ پھر میرے استاد نے دیکھا کہ میں اپنا بازو نہیں ہلا سکتا۔ ہسپتال میں وہ جو کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے اس کے بازو کی ایکس رے لی اور ڈاکٹر نے اسے اس کی ہڈی میں دراڑ کی تصویر دکھائی۔ ایک نرس نے جو کے بازو کو پٹی میں لپیٹ دیا۔ پھر انہوں نے اس کا بازو سلنگ میں ڈال دیا۔ جو غمگین تھا کہ وہ کچھ ہفتوں تک فٹ بال نہیں کھیل سکے گا،
लेकिन उसकी माँ ने इसे खुश करने के लिए हस्पताल की दुकान से मिठाइयों का एक डब्बा खरीदा। मुझे उम्मीद है कि बेला चोरी नहीं करेगी, जो ने डब्बा खोलते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वो करेगी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि इसने काफी मिठाइयां खा ली हैं जो उसे तवील अरसे तक चली जाएंगी। स्कूल वापस जाने की कहानियां जो और बेला। गर्मियां खत्म हो गई थीं और स्कूल वापस जाने का वक्त आ गया था। करता बहुत कुछ मुनज़्ज़म करने के लिए गाने की माँ। मुझे यकीन नहीं आता कि ततीलात खत्म हो गई हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब की शिकायत क्यों है, कहा जो 10 साल का था। तुम तो स्कूल भी नहीं जाते, लेकिन हमें अब दोनों को हर सुबह बिस्तर से बाहर निकालना पड़ता है, कहा वालिद ने। और दरवाजे से बाहर आपके होमवर्क और साफ वर्दी के साथ और एक अच्छा नाश्ता आपके अंदर, हमारे काम पर जाने से पहले। जो स्कूल के मुंतज़िर थे, वो अपने दोस्तों को दोबारा देखना चाहता था। वाहिद बात ये थी कि इस साल उसकी छोटी बहन बेला, जो 4 साल की थी, भी स्कूल जा रही थी। जो इस बारे में यकीन नहीं था। मुझे उम्मीद है कि बेला को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसने माँ से कहा। ओए, वो जल्द ही दोस्त बना लेगी, कहा माँ ने। आपको मुश्किल से पता चलेगा कि वो वहां है। जो इस बारे में यकीन नहीं था। बेला बहुत पुरजोश थी। वो मुसलसल सबको अपना नया पेंसिल केस और बैग और पानी की बोतल दिखा रही थी, और जो को ऐसा लगा जैसे इसने उन्हें 100 बार देखा हो। आखिरकार सुबह आ गई। अलार्म बज गया और जो और बेला बिस्तर से बाहर निकलकर अपनी नई वर्दी में आ गए। माँ ने कटोरियों में अनाज डाल दिया और सब ने इसे निगल लिया। फिर वालिद ने चीखा, मैं देर हो चुका हूं, और बस पकड़ने के लिए भागा, और माँ ने अपनी घड़ी देखी। चलो बच्चों, जल्दी करो, मुझे भी काम मिल गया है। जब वो खेल के मैदान पहुंचे तो हर तरफ बच्चे और वालिदैन थे। जो ने अपने एक दोस्त को लहराया। अरे फिन, तुम कैसे हो? बेला को स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन अब जब बड़े बच्चे हर तरफ भाग रहे थे और सारा शोर मचा हुआ था, वो यकीन नहीं थी। उसने माँ की सकट को मजबूती से पकड़ लिया। मामा, उसने पिचपकाया। माँ एक और वालिदैन से बात कर रही थी और उसने नोटिस नहीं किया। लेकिन जो ने क्या हुआ बेला? बेला का निचला होंठ कांप रहा था। मैं आखिरकार स्कूल नहीं जाना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूं। जो ने जल्दी से सोचा। अगर तुम घर गए बेला, तो तुम्हारा नया पेंसिल केस कोई नहीं देखेगा। ये सच है, बेला ने तस्लीम किया। इसके अलावा माँ ने आपको नाश्ते के लिए किशमिश का एक डब्बा दिया है। बेला को किशमिश पसंद थी। ठीक है, इसने कहा, मैं रहूंगा। माँ बेला को उसकी नई क्लास रूम ले गई। जो इतना मसरूफ था कि इसके पास बेला के बारे में सोचने का वक्त नहीं था जब तक कि हेड टीचर मिसेस समीलिस ने क्लास रूम के दरवाजे से सर अंदर नहीं रखा। क्या आप मेरे साथ एक लम्हे के लिए आ सकते हैं? जो उसने कहा। जो थोड़ा परेशान था, वो क्या चाहती थी। हमें बेला के साथ मसला हो रहा है, मिसेस समीलिस ने वजाहत की। इसे अपनी नई टीचर पसंद नहीं है और अब वो कहती है कि वो नहीं रहेगी। अपनी क्लास रूम में बेला ड्रेसिंग अप के इलाके में एक मेज के नीचे छप रही थी। इसका सर लिबास के नीचे दफन था और वो चल रही थी। जो मेज के नीचे रींग गया। क्या हुआ बेला? उसने पूछा। मुझे वो पसंद नहीं है, बेला ने अपने उस्ताद की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो एक भेड़िया है। क्या? कहा जो। ये सिर्फ मेरा नाम है, उस्ताद ने बेसब्री से कहा। मैं मिसेस वुल्फ हूं। वो वाकई एक भेड़िया नहीं है, जो ने बेला से कहा। इसकी दम नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? जो ने कराहिना। उसे पता था कि बेला स्कूल में परेशानी का बाइस बनेगी और उसके बड़े दांत हैं, बेला ने कहा। फिर जो के पास एक ख्याल आया। अगर वो एक भेड़िया भी है, उसने कहा, तो शायद वो एक अच्छा भेड़िया है।
बहुत से भेड़िए हैं। ये सिर्फ परियों की कहानियों में है कि वो बद है। बेला ने आंसू पोंछे और मिसेस वुल्फ की तरफ देखा। इसकी आंखें अच्छी हैं। शुक्रिया, मिसेस वुल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ना अब बाहर आकर एक कहानी सुने। बेला को कहानियां पसंद थीं। वो बाहर और मिसेस वुल्फ को अपना हाथ दिया। मुझे नहीं लगता कि वो आखिरकार एक भेड़िया है, उसने जो से कहा। नहीं तो इसके पंजे होते। जो मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में वापस आ गया। इसकी छोटी बहन का स्कूल में होना दिलचस्प होगा। Thanks for watching. जो फुटबॉल से बहुत प्यार करता था। वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, हफ्ते के आखिर में अपने वालिद के साथ पार्क में और कभी कभी अपने पीछे के बाग में अपनी छोटी बहन बेला के साथ भी फुटबॉल खेलता था। जब वो गेंद को लात मारने की कोशिश करती थी तो आम तौर पर वो छोड़ देती थी। लेकिन ये कुछ न करने से बेहतर था। काश मैं स्कूल की टीम में हो सकता, जो ने अपने दोस्त फिन से कहा। लेकिन शायद इसलिए कि वो अपनी उम्र के लिए छोटा था, इसे कभी नहीं चुना गया। फिर एक दिन वक्फे के वक्त, जब जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल कोच मिस्टर बर्टन आए। आप इस हफ्ते के आखिर में स्कूल की टीम के लिए खेलना चाहेंगे? मिस्टर बर्टन ने पूछा। जो को ऐसा लगा जैसे वो फटने वाला है। मुझे बहुत पसंद आएगा, उसने कहा। जो इतना पुरजोश था कि वो अपनी वालिदा और वालिद को बताने का इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन एक मसला था। मुझे तुम पर बहुत फख्र है, मां ने कहा। लेकिन अलिफाफ, मुझे यकीन नहीं है कि तुम इस हफ्ते के आखिर में खेल सकते हो। अब देखें, मैं और आपके वालिद बाहर हैं और आप और बेला दादी के साथ रहने जा रहे हैं। दादी करीब ही रहती थी। वो अक्सर मां और वालिद के मसरूफ होने पर जो और बेला की देखभाल करती थी। लेकिन मुझे जाना है, जो ने कहा। ये मेरा बड़ा मौका है। दादी ने मंसूबा बनाया था कि वो उन्हें अपने कुत्ते सेल्बी के साथ सुबह के वक्त तवील सैर पर ले जाए। लेकिन जब इसने सुना तो उसने कहा कि वो इसके बजाय जो को फुटबॉल मैच पर ले जाएगी। यकीन है, मुझे बेला और सेल्बी को भी साथ लाना पड़ेगा। जो इस बारे में यकीन नहीं था। बेला इतनी तकलीफ दे हो सकती थी। आप कभी यकीन नहीं कर सकते थे कि वो क्या कर सकती है। हफ्ते की सुबह को जो को नाश्ता करना मुश्किल हो गया। वो बहुत घबरा गया था। उसने जब दादी देख नहीं रही थी तो सेल्बी को अपना कुछ टोस्ट दे दिया। फुटबॉल का मैदान पार्क में था। बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे थे और बहुत से वालिदैन देखने के लिए किनारे पर खड़े थे। इनमें से कुछ के पास कुत्ते थे। कुत्तों ने सेल्बी पर भौंकना शुरू कर दिया और सेल्बी ने वापस भौंक दिया। खुश था कि दादी सेल्बी और बेला को मजबूती से पकड़े हुए थी। सेल्बी उसकी लीड पर जोर से खींच रहा था और बेला ऊपर और नीचे कूद रही थी। गरीब दादी दो हिस्सों में खींचे जाने के करीब थी। सीटी बजी और मैच शुरू हो गया। जो गेंद लेकर मैदान में दौड़ा। वो गेंद पास करने ही वाला था कि दूसरी टीम का एक बड़ा लड़का इससे टकरा गया। वो जो से तकरीबन 2 गना बड़ा था। जो की सारी सांस बाहर निकल गई और गेंद मैदान से बाहर चली गई। जो को उम्मीद थी कि रेफरी लड़के को येलो कार्ड दिखाएगा। लेकिन रेफरी ने नोटिस नहीं लिया। शायद बहुत सारे खिलाड़ी रास्ते में आ गए थे। इसके बाद जब भी रेफरी उनकी समत नहीं देख रहा था, बड़ा लड़का जो को धक्का दे देता था। इससे जो के लिए अच्छा खेलना वाकई मुश्किल हो गया। जब अगली बार गेंद उनकी तरफ आई तो बड़े लड़के ने अपना पांव निकाला और जो को ठोकर मारी। अरे, फन ने चीखा जब जो जमीन पर पड़ा था। क्या तुमने ये देखा? लेकिन रेफरी ने कहा कि ये एक हादसा था। सेल्बी और बेला ने देखा था। सेल्बी ने अपनी लीड को खींच लिया और रेफरी पर भौंका। बरा करम इस कुत्ते को कंट्रोल करें, रेफरी ने दादी से कहा, या मैं आपको चले जाने को कहूंगा। दादी सेल्बी को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी कि इसने बेला का हाथ छोड़ दिया। बेला मैदान में और इस लड़के के पास भागी जिसने जो को ठोकर मारी थी। तुम मेरे भाई को ठोकर मारने की हिम्मत मत करना, उसने इससे कहा।
मैंने तुम्हें इसे धक्का देते हुए भी देखा, जो वाकई शर्मिंदा था। लेकिन इसकी हैरत की बात यह थी कि ज्यादातर वालिदैन और खिलाड़ी बेला की तरफ थे। इनमें से कुछ ने चेयर करना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा। वो बड़ा लड़का एक बिल है। ये शर्मनाक है। दादी ने बेला को पकड़ लिया। बाकी मैच के लिए बड़े लड़के ने जो को छूने की हिम्मत नहीं की, और 15 मिनट के बाद जो ने एक गोल कर दिया। क्या मैं हमेशा आपका फुटबॉल खेलते हुए देखने आ सकती हूं? बेला ने खेल के आखिर में पूछा, और जो ने कहा कि वो कर सकती है। एक बार का एक हफ्ते के आखिर में मामा को अस्पताल में ड्यूटी करनी पड़ी और बाबा को बहुत सारा मार्किंग का काम था। उसका मतलब ये था कि इन दोनों के पास जो और बेला की देखभाल करने का वक्त नहीं था। लेकिन जो और बेला को कोई परवाह नहीं थी। वो अपना आखिर हफ्ता दादी के साथ गुजारने वाले थे और दादी ने उन्हें साहिल समंदर ले जाने का वादा किया था। बस एक मसला था। जब वो हफ्ते की सुबह सवेरे उठे और खिड़की से बाहर देखा तो बारिश का पानी बह रहा था। बेला ने अपनी नाक शीशे से लगाई और उम्मीद से बोली, हम फिर भी जा सकते हैं, क्या हम नहीं जा सकते? लेकिन जब दादी उन्हें लेने आए तो अभी भी बारिश हो रही थी और दादी ने कहा कि उन्हें सिर्फ दिन गुजारना पड़ेगा, उनके घर पर ही रहना पड़ेगा। बारिश होती रही और होती रही। उन्होंने टीवी पर फिल्म देखी और जब वो रुकीं तो अभी भी बारिश हो रही थी। उन्होंने दादी के साथ ताश खेले और जब वो रुकीं तो अभी भी बारिश हो रही थी। उन्होंने पीर के लिए कुछ घर का काम किया और जब वो रुकीं तो अभी भी बारिश हो रही थी। उन्होंने दादी के कुत्ते सेल्बी को सिर पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सेल्बी ने एक नजर देखी, रोना शुरू कर दिया और वापस अंदर भाग गया। आखिरकार दादी घर का काम करने चली गई। जो ने मजीद घर का काम करने का फैसला किया। स्कूल में इसके टेस्ट आने वाले थे और मामा और बाबा उसे हमेशा ज्यादा मेहनत करने के लिए कहते रहते थे। लेकिन बेला टेस्टों की फिक्र करने के लिए बहुत छोटी थी। मुझे बोर हो रहा है, उसने कहा। मुझे ये मौसम पसंद नहीं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, जो ने कहा। आपको उसे बेहतरीन बनाना होगा। बेला चली गई। जो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, वो अपनी रियाजी में बहुत मसरूफ था। ताहम कुछ देर बाद उसने बावर्ची खाने से धड़कन और थपथपाई की आवाज सुनी। बेला क्या कर रही थी? वो उठा और दरवाजे से देखा। बेला एक बड़े मिक्सिंग बोल में कुछ मिला रही थी। ये क्या है? जो ने पूछा। ये एक खूबसूरत केक है, बेला खुशी से बोली। लेकिन आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये एक राहत है, जो ने कहा, क्योंकि ये बहुत खौफनाक लगता है और उसकी बो भी बदतर है। केक के मुरक्कब में हर तरह की गुठलियां थीं और उसकी बो ऐसी थी कि जैसे जो ने कभी किसी केक की बो नहीं सूंघी होती। ये इंसानों के लिए नहीं है, बेला ने कहा। ये कुत्तों के लिए है। मैंने इसे खास तौर पर सेल्बी के लिए बनाया है, क्योंकि वो अपने सिर पर नहीं जा सका। इसमें क्या है? जो ने पूछा। कुत्ते का खाना, बेला ने कहा। बेवकूफ। और उसमें कॉर्नफ्लेक्स है, क्योंकि सेल्बी को कॉर्नफ्लेक्स पसंद है। और दही, क्योंकि सेल्बी को दही पसंद है। और टोस्ट और बिस्कुट और टीनट रेज पुडिंग। जो सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही बीमार महसूस कर रहा था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सेल्बी को ये पसंद आएगा, इसने कहा। लेकिन सेल्बी को ये पसंद नहीं आया। जब बेला ने इसे खाने के लिए जमीन पर रख दिया, कच्ची, क्योंकि इसने कहा कि इसका जायका इस तरह बेहतर होगा, सेल्बी ने एक सूंघ ली और फिर कमरे से भाग गया। बेला आंसुओं में फट पड़ी। दादी भागकर बावर्ची खाने में आए। वो देर, क्या बात है, बेला? इसने पूछा। बारिश हो रही है, बेला ने चीख कर कहा। ये कभी नहीं रुकेगा। हम साहिल समंदर नहीं जा सकते। और अब सेल्बी को मेरा केक पसंद नहीं है। जो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानता था कि बेला कैसे महसूस कर रही है। ये एक खौफनाक दिन बन रहा था। अब फिर, दादी ने कहा, चीजें इतनी बुरी नहीं है।
کیوں نہ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کریں؟ کیسا؟ بیلا نے صنف کیا۔ کیا ہم اپنے والدین کے لیے حیرت کے طور پر کیک نہیں بنا سکتے؟ انسانوں کے لیے کیک، کتوں کے لیے نہیں۔ آخر کار وہ پورا دن سخت محنت کر رہے ہیں۔ کیا ہم کچھ کھا سکتے ہیں؟ بیلا نے پوچھا۔ بلا شبہ آپ کر سکتے ہیں، دادی نے کہا۔ اور کیا یہ چاکلیٹ اسپنج ہو سکتا ہے؟ جو نے پوچھا۔ چاکلیٹ آئسنگ کے ساتھ؟ بیلا نے پوچھا۔ اور چھڑکیں؟ یقیناً ہو سکتا ہے، دادی نے کہا۔ انہوں نے کیک بنانے میں بہت مزہ کیا، اور جب انہوں نے سجاوٹ ختم کی تو انہیں اچانک احساس ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ جلدی کرو، جب تک سورج چمک رہا ہے باہر نکل جاؤ، دادی نے کہا۔ وہ سیلبی کو پارک لے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ماما اور بابا پہنچ چکے تھے۔ سبھی صرف کیک کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے تیار تھے۔ جو اور بیلا کی اسکول ٹرپ کی کہانیاں۔ ایک دن جو کے استاد کے پاس کچھ خبریں تھیں۔ ہم اسکول کا سفر کرنے جا رہے ہیں، اس نے کلاس کو بتایا۔ جیسا کہ ہم مختلف جانوروں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ہم ایک وائلڈ لائف پارک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی پرجوش تھا۔ ریچ فن نے پلے ٹائم پر چیخا۔ گینڈے، چیتے، جو چلایا۔ شیر۔ اس شام جو نے اپنے والدین کو اسکول کے سفر کے بارے میں خط دکھایا۔ شاندار، ماں نے کہا۔ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی ہر چیز ہو۔ کیا واقعی شیر ہوں گے؟ بیلا نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں جوش سے بڑی ہو گئیں۔ جی ہاں، اور چیتے بھی، بیلا نے کہا، اور اس کی آنکھیں اور بھی بڑی ہو گئیں۔ سفر کی صبح کو جو کے پاس ہر چیز تیار تھی۔ اس کے پاس اپنے ساندوچ اور پانی کی بوتل کے ساتھ ایک بیک پیک تھا۔ اس کے پاس گرم موسم کے لیے ایک گرم اسکارف تھا، اور گرمی پڑنے کی صورت میں دھوپ سے بچنے والا کریم تھا۔ اس کے پاس جانوروں کی تصاویر لینے کے لیے ایک کیمرہ تھا۔ جلدی کرو، اس نے ناشتے میں کہا۔ میں دیر نہیں کر سکتا۔ وہ میرے بغیر چلے جائیں گے۔ فکر مت کرو، بیلا نے کہا۔ میں تیار ہوں۔ دیکھو، میں جانوروں کے بھوکے ہونے کی صورت میں کچھ اضافی نمکین لے رہی ہوں۔ سب نے بیلا کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس ایک پیکڈ لنچ، پانی کی بوتل، اسکارف اور سن اسکرین تھا۔ اسے لگا کہ وہ بھی وائلڈ لائف پارک جا رہی ہے۔ لیکن بیلا، والد نے کہا، جو جا رہا ہے، تم نہیں۔ یہ ایک اسکول کا سفر ہے، بیلا چلایا۔ میں اسکول کا حصہ ہوں۔ لیکن یہ سفر صرف بڑوں کے لیے ہے، ماں نے کہا۔ میں جانوروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، بیلا نے چیخا۔ جو کچھ نہیں کہا۔ اس نے سوچا کہ اس کی بہن ہمیشہ کیوں شور مچاتی ہے۔ وہ ہمیشہ کیوں مداخلت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے والدین بیلا کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو اور بیلا کی اسکول ٹرپ کی کہانیاں۔ ایک دن جو کے استاد کے پاس کچھ خبریں تھیں۔ ہم اسکول کا سفر کرنے جا رہے ہیں، اس نے کلاس کو بتایا۔ جیسا کہ ہم مختلف جانوروں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ہم ایک وائلڈ لائف پارک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی پرجوش تھا۔ ریچ فن نے پلے ٹائم پر چیخا۔ گینڈے، چیتے، جو چلایا۔ شیر۔ اس شام جو نے اپنے والدین کو اسکول کے سفر کے بارے میں خط دکھایا۔ شاندار، ماں نے کہا۔ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی ہر چیز ہو۔ کیا واقعی شیر ہوں گے؟ بیلا نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں جوش سے بڑی ہو گئیں۔ جی ہاں، اور چیتے بھی، بیلا نے کہا، اور اس کی آنکھیں اور بھی بڑی ہو گئیں۔ سفر کی صبح کو جو کے پاس ہر چیز تیار تھی۔ اس کے پاس اپنے ساندوچ اور پانی کی بوتل کے ساتھ ایک بیک پیک تھا۔ اس کے پاس گرم موسم کے لیے ایک گرم اسکارف تھا، اور گرمی پڑنے کی صورت میں دھوپ سے بچنے والا کریم تھا۔ اس کے پاس جانوروں کی تصاویر لینے کے لیے ایک کیمرہ تھا۔ جلدی کرو، اس نے ناشتے میں کہا۔ میں دیر نہیں کر سکتا۔ وہ میرے بغیر چلے جائیں گے۔ فکر مت کرو،
बेला ने कहा। मैं तैयार हूं। देखो, मैं जानवरों के भूखे होने की सूरत में कुछ इजाफी नमकीन ले रही हूं। सब ने बेला की तरफ देखा। इसके पास एक पैकेट लंच, पानी की बोतल, स्कार्फ और सनस्क्रीन था। उसे लगा कि वो भी वाइल्ड लाइफ पार्क जा रही है। लेकिन बेला, वालिद ने कहा, जो जा रहा है, तुम नहीं। ये एक स्कूल का सफर है, बेला चलाया। मैं स्कूल का हिस्सा हूं। लेकिन यह सफर सिर्फ बड़ों के लिए है, मां ने कहा। मैं जानवरों को देखना चाहता हूं, बेला ने चीखा। जो कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि उसकी बहन हमेशा क्यों शोर मचाती है। वो हमेशा क्यों मुदाखलत करने की कोशिश करती है। इसके वालिदैन बेला को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे थे। जो को एक खौफनाक सदमा हुआ। एक रुकावट थी जिस पर एक निशान था। इस पर लिखा था, इस सफाई के बाइस बड़ी बली का बाड़ा आज बंद है। अरे अच्छा, फिन ने कहा। हमारे पास गैंडे देखने का वक्त है अगर हम दौड़ते हैं। जो सारा रास्ता स्कूल तक बहुत खामोश रहा। वाइल्ड लाइफ पार्क कैसा था? वालिद ने चाय के वक्त पूछा। क्या आपने बहुत सारे जानवर देखे? ठीक है, जो ने कहा। मैं इस आखिर हफ्ते जा रहा हूं, बेला ने कहा। तुम जानते हो क्या? जो ने कहा। मुझे लगता है कि मैं भी आऊंगा। हो रही, बेला चीखा। जो और बेला की कहानियां, सड़क का सफर। क्या हम अभी पहुंच गए हैं? बेला ने अपनी मां की सीट की पिछली तरफ अपने पांव पटकते हुए पूछा। जो उसके साथ बैठा था, ने गिड़गिड़ाया। ये 10वीं बार है जब इसने ये पूछा है। और अभी तो मील का फासला है। हॉब्सन फैमिली नानी और दादा से मिलने के लिए स्कॉटलैंड जा रही थी। स्कूल की छुट्टियां थीं और वो वहां एक पूरा हफ्ता गुजारने वाले थे। उन्होंने अपने तमाम सूफ केसेस कार में भरा दिए थे और अपने दोस्तों और दादी को अलविदा कहा था, जो उनकी पालतू जानवरों की देखभाल करने वाली थी। अब बेला और जो पीछे की सीट पर बैठे थे। लेकिन बेला बोर हो गई थी। क्या तुम नाप लेगी? बेला, वालिद ने तजवीज किया। मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों ना अपनी टैबलेट पर एक और फिल्म देखें? नहीं चाहता। आई स्पाई खेलते हैं, मां ने कहा। तुम शुरू करो, जो। बेला को ये खेल हमेशा पसंद आता था। जो को कुछ ऐसा चुनना पड़ता था जो वो देख सके, और दूसरों को अंदाजा लगाना पड़ता था कि वो किया था। जो ने अर्ध गिर्द देखा और एक मैदान में चरते हुए कुछ गाय देखी। मैं अपनी छोटी आंख से देखता हूं, काफ से शुरू होने वाली कोई चीज। कार, मां ने अंदाजा लगाया। नहीं। कैंपर वैन, वालिद ने अंदाजा लगाया। नहीं। बादल, बेला ने अंदाजा लगाया। नहीं। फिर किया है, गाय, जो ने कहा। लेकिन मुझे कोई गाय नजर नहीं आ रही, बेला ने अर्ध गिर्द देखते हुए कहा। ठीक है, नहीं, जो ने तस्लीम किया। हम अब गुजर चुके हैं। लेकिन पहले गांव का एक मैदान था। बेला खुश नहीं थी। लिहाजा जो ने उसे बारी दी। परेशानी ये थी कि वो जल्द ही आई स्पाई करने की चीजें खत्म कर देते थे। देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, सिवाय मैदानों और हेजिस के, उनके सामने सड़क और गुजरने वाली ट्रैफिक के। लिहाजा ये एक बड़ी राहत की बात थी जब वालिद ने अचानक कहा, मुझे काफी नजर आती है, और मां ने कार को मोटरवे से हटाकर एक मोटरवे सर्विस स्टेशन में ले लिया। नाश्ता करने से सबका दिल खुश हो गया। फिर उन्होंने कार में मजीद पेट्रोल डाला। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, मां ने रवानगी के वक्त कहा। लेकिन जब वालिद मोटरवे की तरफ गाड़ी चला रहे थे, तो उन्हें एक खौफनाक सदमा लगा। जहां तक आंख देख सकती थी गाड़ियां थीं, और उनमें से कोई भी हरकत नहीं कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था। जरूर सड़क की मरम्मत हो रही होगी, मां ने कहा। इसमें घंटे लग जाएंगे, जो ने कहा। वालिद ने कार को मोड़ दिया। हम मोटरवे पर नहीं जाएंगे। हम छोटी सड़कों पर जाएंगे। लेकिन हमें रास्ता नहीं पता, मां ने कहा। हम अपने फोन इस्तेमाल करेंगे। वो हमें रास्ता दिखाएंगे।
वो पहाड़ियों में चले गए। अब और कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई ट्रैफिक नहीं थी। परेशानी ये थी कि जल्द ही कोई फोन रिसेप्शन भी नहीं था। मुझे पता था कि ये एक बुरा ख्याल था, मां ने कहा। बकवास, वालिद ने कहा। मुझे पता है कि हम कहां जा रहे हैं। बेला सो गई। सड़कें तंग होती गईं और देहाती लीनों में बदल गईं। आखिरकार वो एक चौराहे पर पहुंचे। अब किया, मां ने कहा। बाईं या दाएं या सीधे? हिमम, वालिद ने कहा। हम खो गए हैं, मां ने कहा। तस्लीम करो, पूछने के लिए कोई नहीं है। मां और वालिद झगड़ने लगे। जो बैठकर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। इसे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन सा रास्ता स्कॉटलैंड जाता है। अच्छी बात यह थी कि बेला अभी सो रही थी, लिहाजा कम अज कम उसे इसकी शिकायत सुनने की जरूरत नहीं थी और पूछ रही थी कि अभी कितना वक्त लगेगा। अचानक बेला जाग गई। क्या हम अभी पहुंच गए हैं? नहीं, जो ने कहा। हमें नहीं पता कि किस तरफ जाएं। बेला ने खिड़की से बाहर इशारा किया। इस तरह, उसने यकीन से कहा। वालिद ने कार शुरू की और जिस तरह बेला ने इशारा किया था इस तरह गाड़ी चलाई। लेकिन वो सिर्फ अंदाजा लगा रही है, जो ने कहा। वो बहुत यकीन से लग रही है, वालिद ने कहा। आखिरकार, हमें कहीं तो जाना पड़ेगा। वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि मां ने चीख मारी। देखो, एक सिग्नल। बेला दुरुस्त थी। जो को हंसना पड़ा। ये एक खुशकिस्मत अंदाजा हो सकता था, लेकिन फिर भी, अगर बेला ना होती, तो वो अभी भी चौराहे पर बहस कर रहे होते। क्या हम अभी पहुंच गए हैं? बेला ने पूछा। हाँ, जो ने कहा, इस बार हम वाकई हैं।